Namaskar, welcome to Ek Samvad at Arunima Ankuran on the occasion of National Technology Day. We're in conversation with Vibhav Kharakpuria about the role of technology in road safety. It's such a privilege to have you here, Vibhav. Thank you so much for joining us and welcome to Ek Samvad. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Vibhav is the founder of Vocal Urban. He's an architect, urban designer, road safety enthusiast, and we'll get to know him a little more when we talk. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can make an impact, and that's what inspires us to keep going. National Technology Day was named by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and first observed on 11th May 1999 to commemorate the scientific and technological achievements of Indian scientists, engineers, researchers, and innovators. This day is a significant milestone in the history of India's technological innovations. India successfully tested nuclear bombs in Pokhran on May 11, 1998, and this day is commemorated every year by honoring the architects of such innovations. Vibhav is one such brilliant change maker who's making a big difference. He's an architect, urban designer, road safety expert with a strong focus on improving the quality of life in cities and villages. He's a brilliant change agent with a bachelor's degree in architecture, a master's degree in urban design, a certification from the World Bank on sustainable transportation, and a certification of road safety leadership from Johns Hopkins International Injuries Research Unit. His interest lies in capacity building, stakeholder engagement, urban design solutions, and analytical and technical expertise to improve road safety concerns. We must rethink engineering solutions in order to enhance road safety. So he is doing great work and we are so proud to have him here. The talking points of our Take Samvad today with Vibhav are the milestones of his journey, a road safety scenario in India, the major causes of road crashes and key solutions, how innovative solutions and collaborations are essential for making our roads safer for all, the role of artificial intelligence, and of course, Vibhav's contribution as a change agent. So, warm welcome to you, Vibhav. Thank you so much for being here. Thank you so much, ma'am, and thank you so much for your kind words and introducing me to Arunima Ankuran. So it's a privilege that I'm here and sharing whatever we have done so far in road safety. Tell us a little bit about yourself and how you got interested in this area, because almost all of us have had some kind of connect with road safety, accidents, and all these things, but not everyone engages in trying to find solutions. So just tell us a little about that. Sure, ma'am. So basically, my journey in started with architecture. I took admission in architecture in 2011. I graduated from architecture and then pursued my master's in urban design here from Delhi, from School of Planning and Architecture. And after that, I joined WRI India. It's a renowned organization, research organization. And here I was working on a road safety specifics. So we had a project to make streets safer for kids in Rohtak. Okay. So from there, my journey actually started in terms of road safety and also looking into what is the need of road safety for a common in our own world. And when we were doing this particular project, I actually got to know a lot more about why these sort of stakeholders engagement are actually important, and why as as an expert, why it is important to understand them, their needs, and how we can resolve their own problems and see and hear out them what are the problems that they are facing every day while they are on roads. Right. So basically that's how my journey started, and then I started teaching at Amity University Noida.
and then I founded my own practice called Vocal Urban in Delhi. And we had recently a project in Nagpur itself that was inaugurated by Sri Nitin Gadkari sir. So that project is still going on. I'll talk about that sort of project that is under Save Life Foundation also. So we are supporting Save Life Foundation in a way to make roads safer in Nagpur and make life easier for the people who are actually crossing that particular intersection, because that intersection has faced multiple crash scenarios in a day. So that's the reason we are doing that, and yes, I'll be sharing more thoughts on that in this session. Yes, ma'am. So, since you are doing so much work with reference to this, just talk to us a little bit about what are some of the road safety concerns and what are some of the causes and what are the solutions you've been looking at. So basically, ma'am, when we look at road safety as such, it is generally, as seen as a problem of common when they are on street, and it's general behavioral problem that an engineer or a police personnel will tell you कि अच्छा यहाँ से लोग अपना behavior नहीं follow करते हैं और ये यहाँ से इस तरीके से जाते हैं. But I'll tell you the scenario through a story, exactly what actually happened. यहाँ पे where I live, so basically there is a urban area, and that urban area is actually bisected by a flyover that has come up with us, and that's the kind of development that which we are living in, right? अभी उस फ्लाईओवर के दोनों तरफ अगर मुझे क्रॉस करके जाना है, so now I'll take a turn, and then if I'll have to move for 3 kilometers to just cross that particular flyover and go to my destination, then why I should be doing that? I should not be doing that. I will always look for a shortcut. अगर 100 मीटर पास में ही मुझे एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाके मेरे लिए आसान है, then whose problem is it? Is it a planning related problem? Is it a behavioral problem? Or it's a thing like where we are living a life where everything is getting expensive every day, and it's not easy to get those petrols and diesels filled in our bikes and cars, or in a general a motor vehicle. For everyone, it's not a very easy thing to do in nowadays, because getting a job has also become a very difficult thing. And that's how people are enforced to use it in that manner कि हमें अच्छा शॉर्टकट लेना है तो अभी हम 100 meters wrong जाके और वहां से चले जाएंगे. Right. So it's actually not a 100% correct saying that कि ये जो लोग यूजर्स हैं उन्हीं का केवल प्रॉब्लम है, बट ये एक्चुअली हमारा खुद का प्रॉब्लम है कि हम सिटी डेवलपमेंट को एज अ होल नहीं देखते. When we are looking towards the city development, we should look into how people are behaving, from where they are traveling. उनका डायरी क्या है रोज का, we don't know that, and we develop. हम अपने हिसाब से जहां पे भी हमें जगह मिलती है वहां से हम अपना यू टर्न बना देते हैं, and there is no back data, or there is lack of back data, जिसके बेसिस पे वो हमारा जो इंटरसेक्शन है या कट है वो हमारे सामने नहीं आता. और इन जनरल प्रैक्टिस हम इसको बोलते हैं कि बिहेवियरल इश्यूज के कारण हमारे बहुत सारे रोड क्रैशेस होते हैं आज सामने जो हमें देखने पड़ते हैं. डेफिनेटली बिहेवियर एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पे रैश ड्राइविंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में ड्राइव करना या फिर राइड करना एक बहुत बड़ा इशू है. बट दिस इज नॉट एन इशू विच इज फेस्ड बाय विच इज एक्चुअली एक्टेड बाय एवरीवन. So it's not a general common problem, but also how that engineering can be used to improve that behavioral to वो behavior को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, वो इंजीनियरिंग के माध्यम से कैसे हो सकता है, उस पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं. That's wonderful. तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि trying to modify the behavior and the technology like together, merging the two things. So talk to us a little bit more about exactly how would you go about doing it, and tell us the whole process. कैसे करते हो? All right. Okay. So basically, ma'am, when we go onto the site, we actually look at exactly how it is located and कहाँ पे है. Basically, उसके आसपास क्या डेवलपमेंट है हमारा, क्या वो एक मार्केट एरिया है या फिर क्या वो एक रेजिडेंशियल एरिया है.
इससे पहले, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक बैक देना चाहता हूँ। वो हम्म ये है कि इन जनरल जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो देयर आर गाइडलाइंस हम्म that are there. But mostly our engineers who are actually working on that sort of guidelines, those guidelines are specifically made for, the highway systems. ओके And when we are living in an urban area, हाँ that actually includes a lot more of behavioral pattern that people are actually, जैसे वो उसको राइट यूज कर रहे हैं जिस हाँ तरीके से, हाँ वो हाँ बिल्कुल बिहेवियर उसके ऊपर आ जाता है। हम्म So when we go to the site, we actually look at what kind of developments are there. Are there market streets? Are there street vendors from where people are actually crossing? What are the different kind of modes that हम्म are actually using that particular intersection or that particular stretch? हम्म बसेस हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं। अगर राइट ऑटो रिक्शाज हैं तो उनके स्टॉप पॉइंट्स कहाँ पे हैं, हम्म उनका क्या बिहेवियर है, वो कहाँ पे खड़े होते हैं, उनके लिए खड़े होने की जगह है या नहीं है। हाँ Pedestrians, do they have safe walking space, which is a footpath? So in general, we lack footpaths in our cities. हाँ तो वहां पे वो फुटपाथ हमारा, अभी हम अगर सीधे जा रहे हैं, फुटपाथ पे हम चल रहे हैं तो हमें वहां पे कचरा दिखाई देगा, हमें वहां पे अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, जिसकी हम्म वजह से हमको फुटपाथ को छोड़ के रोड पे आना पड़ता है। राइट और वो रोड पे आने के बाद वी हैव टू शेयर द स्पेस विद द व्हीकल, हम्म and that creates a kind of a problem when a pedestrian is, हम्म sharing a space with vehicles which is on a higher speed. So that is a kind of a general thing that we look at when we go onto the site. हम्म In terms of technology, what we are doing, we are collecting all these informations on maps, हम्म and then we use CCTV cameras to actually capture the whole day scenario. 24 घंटे में वो बिहेवियर कैसे हो रहा है, हम्म लोग कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम एज इन हमारे टोटल कितने टू व्हीलर्स चल रहे हैं, टोटल कितने फोर व्हीलर्स वहां पे चल रहे हैं, कितनी हम्म बसेस चल रही हैं, क्या वो जिस वॉल्यूम पे चल रही है उस हिसाब से हमारा जो रोड स्पेस है वो इनफ है या ज्यादा है या कम है, ओके उसके लिए हम फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, व्हेन वी कैप्चर इट एंड व्हेन वी गेट दीज काइंड ऑफ डेटा सेट्स, हम्म then we can actually use it with the guidelines that the government has prepared and has come up to actually resolve the problem. So हम्म that is the need of today, I think. And I think most of the, in general practices, most of the companies who are actually started with this, they are also considering these sort of artificial intelligence and technologies role into road safety and in general practice of developing a road or an intersection right now. So उस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। ओके तो ये एक बहुत it's a very innovative kind of an application of technology that you are actually collecting all the data like that. So once you've collected the data and you what exactly does Vibhav do, like what is his contribution? Hmm. तो बेसिकली व्हेन आई हैव अ डेटा सेट, Hmm. जब मुझे पता है कि अभी लोग कहाँ से हमारे पास में आ रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका स्पीड क्या है, क्या Hmm. प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में उनके साथ हो सकते थे। Hmm. प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर हमारा 1 मीटर की रेडियस हमने मान लिया, और एक गाड़ी का हमने 2 मीटर का रेडियस हमने लेके उसको एक सर्कल बना दिया। ठीक अभी हमारा फोर व्हीलर बी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में उसका स्पीड भी वेरी करता है, तो उसका एक एवरेज स्पीड हमारे पास में आता है, ओके और टू व्हीलर का भी हमारे पास में एक एवरेज स्पीड आता है। हम्म उस स्पीड को देखने के बाद में व्हाट वी गेट इज कि क्या वो दोनों व्हीकल इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते थे उस स्पीड से। सो दैट इज द प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट दैट वी गेट टू नो एग्जैक्टली। ओके एंड इफ दैट कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम्म इज इट समथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, कि वहां पे अच्छा वो इंजीनियरिंग जिस तरीके से रोड का इंटरसेक्शन वो डिजाइन किया गया है, हम्म क्या वो लोगों को रोक नहीं पा रहा है, क्या वो हम्म लोगों को रॉन्ग साइड मूवमेंट या रॉन्ग बिहेवियर के लिए प्रमोट कर रहा है। हम्म वी लुक एट दैट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम्म अच्छा उसमें इंजीनियरिंग बिट, उसका डेटा सेट हम उसको इंजीनियरिंग बिट में डाल के देखते हैं कि अच्छा वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है अभी। हम्म एंड देन माई रोल इज टू एक्चुअली डिजाइन इट। हम हम्म उसको पहले टेम्पररी बेसिस पे डिजाइन करते हैं जो भी हमारे पास डेटा सेट आता है, और फिर हम उसको टेस्ट आउट करते हैं
अब ये जो टेस्टिंग आउट का प्रोसेस है, इसको टैक्टिकल अर्बनिज्म कहा जाता है। इसमें हमारे पास में कोन्स होते हैं, वाटर फिल्ड बैरिकेड्स होते हैं, पेंट्स होते हैं। हम्म जो भी हमारा प्रॉपर ऑन पेपर डिजाइन होता है, हम उसको जाके 10-15 दिन में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कर देते हैं, टेम्पररी ओके बेसिस के लिए फॉर अ मंथ। ओके कि वो अभी वहां पे लोगों का बिहेवियर, लोगों का पैटर्न कैसा रहेगा, उसको हम्म देखने के लिए, समझने के लिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में जहां पे भी हमको पेडेस्ट्रियन स्पेस रिक्लेम करना होता है, रिक्लेम एज इन जहां पे पैदल लोग सुरक्षित चल पाए हमारे लिए, हम्म वहां से अंदर वाला स्पेस हम वो पूरा पेडेस्ट्रियंस के लिए रख देते हैं। वहां पे हम स्ट्रीट वेंडर्स को रख देते हैं ताकि हमारी स्ट्रीट्स अलाइव रहे, हम्म जो भी पैदल जाने वाले हैं वो उनको यूज करते रहे, वहां से वो लोकल इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है कंप्लीटली। हम्म और जो हमारा व्हीकल चल रहा है उसको वो फिजिकली इन्फोर्स करे, वो वहां पे वो रॉन्ग साइड टर्न या रॉन्ग साइड मूवमेंट अब ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सर्विस रोड पे हमारा एक काफी चौड़ा सर्विस रोड है, काफी बड़ा सर्विस रोड है, अगर मैं एक छोर से देखता हूँ कि वहां पे तो इतना बड़ा स्पेस है और उधर से दूसरी जो गाड़ी आ रही है मेरे सामने, हम्म उसको आने में अभी वक्त है, सामने रेड लाइट है, हाँ टाइम मेरे सामने 100 सेकंड का है, तो हम्म मैं 100 सेकंड को वेट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगेगा कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, किसी तरीके का कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो हम्म मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ किसी को भी बिना हार्म किए। बट उसकी वजह से क्या होता है कि सामने से जो हमारा इंसान आ रहा होता है, वो हमेशा राइट डायरेक्शन में देखता है। जैसे हम लोग अपने लेफ्ट में हाँ चलते हैं, हाँ तो हमारी जिस तरफ से गाड़ियां आ रही होती हैं हम उस तरफ देखते हैं हमेशा। हम हाँ रॉन्ग साइड को प्रेफर नहीं करते हैं देखने के लिए। हम्म और वो बगैर देखे जब चलता है तो फिर वो क्रैशेस होते हैं, और उसकी वजह से रोड डेथ्स होती हैं ज्यादातर करके, जो कि हाईवे सिस्टम्स में मोस्टली होती हैं। और जहाँ पे हाईवे और अर्बन एरियाज मिक्स होते हैं वहां पे ये बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम जब टेस्ट आउट करते हैं तो हम इन सारी चीजों को कंसीडरेशन में रखते हैं कि वो फिजिकली एज अ इन्फोर्समेंट एलिमेंट काम करे, वो पूरा का पूरा डिजाइन पैटर्न हमारा, हम्म और वो लोगों को रोके कि ताकि वो रॉन्ग साइड या रॉन्ग मूवमेंट ना कर पाए, और वो वेट करें वहां पे कि अभी अच्छा उन्हें भी डर लगे थोड़ा सा कि नहीं वहां से भी अब व्हीकल आ जाएगा पास में। तो ये हम लोग का प्रोसेस रहता है थोड़ा। ओके वाओ सो दिस इज लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर काइंड ऑफ थिंग वंस यू डू दैट ठीक है आपने वो टेस्ट कर लिया Yes. व्हाट नेक्स्ट अब जब हमने उसको टेस्ट कर लिया, देन वी एक्चुअली एनालाइज इट, फिर से हम 24 घंटे के लिए वहां पे कैमरा लगाएंगे, देन विल अगेन सी कि एग्जैक्टली अभी क्या लोगों का बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, क्या हम्म हमने जो पब्लिक स्पेस क्रिएट किया था जहां पे हमारे पास में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आर दैट स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स आर एक्सेसिबल, वहां पे क्या लोग जा पा रहे हैं, आराम से एक्सेस कर पा रहे हैं। हम्म उनका प्री हम सर्वे करते हैं वहां पे ऑन साइट जाके, उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। जब ओके हम अपना ट्रायल कर रहे होते हैं तब भी हम उनके साथ में सर्वे करते हैं, उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहेंगे। तो हम्म एक तरीके से उनको हम इन्वॉल्व करते हैं कंप्लीटली प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब करने के बाद में जब हमारे पास वो ऑन पेपर जो टेस्टिंग ड्राइंग था हमारा, हम्म देन वी लुक एट इट, और फिर हम उस ड्राइंग को सुधार करने के बाद में फिर हम उसका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं फॉर परमानेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ओके इससे क्या होता है कि हमने जो भी डिजाइन बनाया इनिशियली, हम्म वो डायरेक्टली फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ परमानेंटली, क्योंकि उसका भी एक कॉस्ट है। अगर वो उसको परमानेंटली वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया और हम्म फिर भी अगर वहां पे क्रैशेस हमारे रुक नहीं रहे और डेथ्स अभी भी हो रही हैं, तो हम्म वो उतना सारा पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। तो कुछ पैसा लगा के अगर हमने उसको टेस्ट कर लिया और अगर हमें वहां पे भी कुछ कमी लगी और उसको हमने रेक्टिफाई करने के बाद में इंप्लीमेंट किया, तो फिर हमारे रोड क्रैशेस में को हम 0% एक्चुअली फेटालिटीज या 0% क्रैशेस तक अचीव कर सकते हैं, जहां पे हमारे कोई भी क्रैशेस नहीं होंगे। that that would be so wonderful so विभव जैसे हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया वो सक्सेसफुल भी हो गया तो कैन यू रिकॉल एनी फीडबैक दैट यू हैव रिसीव्ड आफ्टर यू फिनिश डूइंग वन सच थिंग Yes, ma'am. So basically, I have personally did experienced basically 15 trials. मैंने बहुत सारे उसमें से लीड भी किए हैं। अभी रिसेंटली जो हमने नागपुर में किया है, हम्म वो पूरा का पूरा प्रॉपर हमने डिजाइन किया विद द हेल्प ऑफ सेव लाइफ फाउंडेशन, हम्म और उनके लिए हमने ये किया। तो इसमें हमारा फीडबैक ऐसा रहता है कि जब हमने उसको डिजाइन कर दिया है, हम्म नाउ द थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो बिहेवियर है लोगों का,
वो Hmm. एकदम से चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि हमने That कुछ is. पेंट किया, Hmm. यस, हमने कुछ एरियाज को पेंट किया और वहां पे लोगों का कहना ऐसा है कि हमें तो समझ में ही नहीं आया कि आपने पेंट किया, ये Ah, शायद से आपने शहर को सुंदर करने के लिए पेंट किया था, आपने उस yes. एरिया को हमें लगा सुंदर करने के लिए किया था, इसलिए हम व्हीकल की साइड से आ रहे थे। तो उसके लिए हम वहां पे साइनेजेस लगाते हैं कि पेडेस्ट्रियंस के लिए वहां पे उनके पास साइनेजेस हो, जिसको देख के वो समझ पाए कि अच्छा नहीं, ये हमारे लिए है वॉक करने के लिए स्पेस। Hmm. और वहां पे लोकली भी वहां पे पार्किंग की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस पार्किंग को हम किस तरीके से मैनेज कर पाए। तो Hmm. बेसिकली द थिंग इज, हमारा जो सिस्टम है एक इंटरसेक्शन का, ये एक स्ट्रीट का, Hmm. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। Hmm. वेंडिंग एक एक्टिविटी है, उसमें यूजर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज, इसमें व्हीकुलर मूवमेंट हो रहा है, पेडिस्ट्रियन मूवमेंट हो रहा है, Hmm. देयर आर शॉप, Hmm. देयर आर किड्स हु आर एक्चुअली प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, Hmm. there are pedestrian crossings, there are parking activities that are happening, street vendors जैसा मैंने पहले बताया वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है एक तरीके से। वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज इन अ मैनर कि अच्छा अगर अभी किसी को यूज करना है, Hmm. समथिंग लाइक कि अगर मुझे एक वेंडिंग जोन तक जाना है Hmm. तो वहां तक मैं सेफली कैसे पहुंच सकता हूँ, Hmm. या फिर मुझे पार्किंग में लगाना है तो वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, मैं उसको किस तरीके से समझ के प्रॉपरली उसको लगा सकता हूँ। ना कि ऐसा हो कि लाइक फॉर से पार्क प्लस इज अ कंपनी विच हैज कम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया ऑफ कमिंग अप विद द पार्किंग सोल्यूशन, कि Hmm. अगर आपको पार्किंग की कोई जरूरत है तो आप एप्लीकेशन पे ही उस एरिया को देख के वहां पे Ah. अपनी पार्किंग पहले से ही बुक कर सकते हैं। और Oh. उसके बाद में वहां से आप बस कर लीजिए, या फिर वहां पे कोई पीबीएस, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग जिसको हम कहते हैं, Ah. वहां पे साइकिल का अगर कोई सिस्टम है तो वहां से वो ले लीजिए। उसके बाद आप मार्केट प्लेस चले या वॉक कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी बेहतर करने में प्रमोट करता है। Hmm. और जो समस्याएं होती है हमारी, हम किसी भी तरीके से जो पार्क कर देते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जैम, कंजेशन और ये सारी चीजें Hmm. होती हैं, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। Hmm. तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे लेके जाना चाह भी रहे हैं और लेके चल रहे हैं वैसे। So, all this is making it sound like Nagpur is aiming at becoming a smart city. तो मुझे लगता है कि this kind of contribution will really take it forward. But there's one very important dimension that I've been thinking of. All the technology you're using, all this comes at a cost, obviously. यस, राइट। So, just for an understanding, how expensive is this whole process? इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो बेसिकली आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। Hmm. एक इंटरसेक्शन या फिर एक 100 मीटर्स का स्ट्रेच बनाने में Hmm. गवर्नमेंट का कुछ 1 करोड़ रुपए लगता है ऑलमोस्ट, Hmm. जिसमें हमारा स्ट्रीट फर्नीचर, स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटिंग वाइटिंग और ये सारी चीजें आ जाती हैं, अंडरग्राउंड यूटिलिटी वगैरह, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके। बट व्हेन वी एक्चुअली टेस्ट दिस आउट, Hmm. this gives us a whole picture, whole idea in or around almost 10% of this particular cost। Okay. 5 to 10% के बीच में। Hmm. इसको अगर और कम करना है तो वो भी पॉसिबल है कि आप इसको और कम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस 10% कॉस्ट में व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज कि आप ये 10% कॉस्ट लगा के यू लर्न इट एंड देन Yes. यू स्केल इट अप। हाँ. इससे आप सीख लो, और उस सीख से कि अच्छा लोगों का यूजर बिहेवियर अभी क्या है इस एरिया में, और Hmm. आसपास के वो कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो Hmm. कौन से एरियाज हैं जहां पे इस वक्त बहुत ज्यादा क्रैशेस हो रहे हैं, Right. उन क्रैश लोकेशंस में हम उनसे क्या सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस जगह पे। तो वहां पे स्पेसिफिकली हमें उस चीज को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हमारी जो लर्निंग है एक इंटरसेक्शन से, उस लर्निंग को हम और जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे हमारा ये टेस्टिंग का कॉस्ट बचाया जा सकता है, और वन गो में ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एरिया लेवल पे। तो इससे ये भी नहीं होगा कि आपने एक इंटरसेक्शन पे कुछ थोड़ा सा काम कर Right. दिया लेकिन बाकी के इंटरसेक्शंस को आपने वैसे ही छोड़ दिया। Yes. इससे अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे इंडिया में 100 लोग होंगे जो इस इंटरसेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं Hmm. कि ये किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। Hmm. बस दीज नंबर्स आर नॉट इनफ, वी आर नॉट इनफ, and we need to scale this up. There is Hmm. a need to actually run the whole capacity building program across India, कि Hmm. हमारा ये लर्निंग है और इससे हम किस तरीके से बेहतर सीख सकते हैं। Hmm. There are multiple ways from where
I remember there was a professor from John Hopkins International Injury Research Unit. उन्होंने हमें इतना नॉलेज दिया कि एक जो हमारा राउंड अबाउट इंटरसेक्शन होता है, आप अगर यहाँ पे ग्रेटर नोएडा या नोएडा में देखोगे तो यहाँ पे राउंड अबाउट पे हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, बट दोज राउंड अबाउट्स आर नॉट मेंट फॉर ट्रैफिक सिग्नल. Oh. राउंड अबाउट पे ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत होती ही नहीं, इसीलिए उसको अब राउंड अबाउट कहते हैं. वहां पे Hmm. ट्रैफिक कंजेशन जैसा सिनेरियो नहीं क्रिएट होना चाहिए अगर हम राउंड अबाउट को डिजाइन कर रहे हैं वहां पे. अच्छा. बट अगर वहां पे हमें लगाने की रिक्वायरमेंट लग रही है, दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारा एक अर्बन लोकेशन आर कनेक्टेड विद डिफरेंट अर्बन लोकेशंस. तो इट्स अ पिक्चर एज अ होल फॉर अ सिटी कि हमारा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे काम करने जाते हैं, उसके बीच में वो कौन सा कॉमन रूट है सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं सबर्बन रीजन में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, और वो Right. पूरे शहर को क्रॉस करके दूसरे एरियाज में जाते हैं काम करने के लिए. तो हमें सिटी सिस्टम को पहले समझने की जरूरत है. उस सिटी सिस्टम को समझने के बाद में हमें उस चीज को टेस्ट आउट करने की जरूरत है एक लोकल एरिया लेवल पे, और वहां से सीख के हमको इसको स्केल अप करने की जरूरत है पूरे शहर में, ताकि हम पूरे उस शहर का जो सिस्टम है, जो वातावरण है, उसको हम अच्छा बना पाए, रहने लायक और सुरक्षित बना पाए. Yes. So Vibhav, this is very interesting for a lay person to know that वहाँ पर सिग्नल होना ही नहीं चाहिए. So tell us a little bit about how you are supposed to design the traffic signals. So basically when we talk about signal, it's moreover about phasing कि वो किस तरीके से काम कर रहा है. There are different phases, 1 phase, 2 phase, 3 phase, 4 phase, जितने भी हमारे आर्म्स हैं उस हिसाब से. अभी प्रोसेस पुलिस का ये होता है कि व्हेन दे गो टू अ साइट टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द ट्रैफिक सिग्नल, वहां पे उसको लगाना है, तो वो 24 घंटे का वो भी अपना बिहेवियरल पैटर्न वहां पे देखते हैं एग्जैक्टली कि कितनी देर तक यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, कितने लोग वहां पे रुक रहे हैं. तो हमें 30 सेकेंड वहां पे ग्रीन लगाने की जरूरत है, या फिर 40 सेकेंड लगाने की जरूरत है, या 45 सेकेंड लगाने की जरूरत है, और फिर उसको एक तरीके से मतलब पूरी टाइम फ्रेम के लिए सेट कर दिया जाता है मोस्टली ज्यादातर लोकेशंस पे. बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने एक दिन के सिनेरियो को इसमें देख लिया कि वहां पे ये चीजें हो रही हैं, बट एक दिन में हमारे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं. हमारे कुछ पीक आवर्स होते हैं जब घरों से लोग निकलते हैं अपने ऑफिस लोकेशन तक जाने के लिए, एंड देर आर नॉन पीक आवर्स ऑल्सो जहां पे हमें उतना ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं चाहिए होता. अगर वहां पे कोई पेडेस्ट्रियन वेट कर रहा है तो द पर्सन शुड वॉक ओवर, वहां से वो जा पाए. अगर रेड लाइट, रेड सिग्नल है वहां पे, तो फिर वो नहीं जा सकता. ही इज नॉट अलाउड और शी इज नॉट अलाउड टू क्रॉस. इसके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से लिया जा सकता है कि जो हमारा वेहिकुलर काउंट है, उस हम काउंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैप्चर करें फॉर अ वीक या फिर फॉर अ डे, और उसको हम रिपीटेटिव मैनर में देख पाए कि एग्जैक्टली अच्छा कौन से हमारे पीक आवर्स हैं और उसमें हमारा क्या सिस्टम है. और जो पूरा ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे बेस्ड हो, जिसकी वजह से फ्यूचर में कभी किसी को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. अगर कभी कोई स्पेशल केस सिनेरियो आता भी है कि मान लीजिए कहीं पे कोई रोड क्लोजर कर दिया गया कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज, और यहाँ पे आज ज्यादा भीड़ आने वाली है, इस इंटरसेक्शन पे ज्यादा लोड आने वाला है, तो फिर वहां से इसका भी और सिनेरियो है कि आपका एक सिग्नल फंक्शन कर रहा है, आपके पैरेलली और सिग्नल्स हैं जहां पे फंक्शन कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लर्न करके बता सकता है कि अभी ये वाला जो आपका आर्म है ये लाइन अप होता जा रहा है, ये आपका 100 मीटर तक लाइन अप हो गया है, दिस शुड बी ग्रीन नाउ. तो इसका 35 सेकेंड से बढ़ा के इसको 50 सेकेंड्स कर दिया जाना चाहिए, ताकि यहां से जल्दी हमारा ट्रैफिक निकल जाए. यूजुअली ये फिजिकली किया जाता है. जब हमें इस तरीके की सिनेरियो को देखना पड़ता है तो पुलिस इन्फॉर्म करती है, कोई इन्फॉर्म करता है, वहां पे फिर मैनुअली उस सिग्नल को रन किया जाता है, वहां पे पूरा येलो कर दिया जाता है, लोगों को भेजा जाता है, ऑफिसर्स को वहां पे कि अभी आप इसको जाके रिजॉल्व करो वहां पे, और घंटों तक वो इसी में लगे रहते हैं. तो इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज भी होते हैं, और पुलिस के प्रोसेस को बेसिकली इस तरीके से ईज किया जा सकता है, इस तरीके से आसान किया जा सकता है उनके प्रोसेस को. Wow, this is really brilliant, Vibhav, because हम लोग टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेबोरेटरी काइंड ऑफ सेटअप में
रख के छोड़ देते हैं. We should really try to apply more of it for finding solutions to such problems. What the way you're doing it, wonderful. तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, this whole thing, how many people like you are required for something like this to be done nationwide and really make a big difference? I think then there are many NGOs and organizations, research organizations who are working, to improve road safety concerns in India Hmm. specifically. Hmm. तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं या फिर नहीं. हमारे जैसे कुछ कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं. बट एज एन अर्बन डिजाइनर, माय रोल इज टू अंडरस्टैंड पीपल कि Yes. उनका क्या रोल है. Hmm. अभी सिस्टम में द गैप इज कि आज इंजीनियर हैं और पुलिस हैं. Hmm. ये एक ब्लेम गेम है कि इंजीनियरों का प्रॉब्लम है कि वो सही से नहीं डिजाइन करते. Hmm. इंजीनियर्स कहते हैं कि ये पुलिस का प्रॉब्लम है कि वो सही से इन्फोर्स नहीं करते. तो बेसिकली यहाँ पे एक नॉलेज गैप है. इस नॉलेज गैप को फिल करने के लिए वी नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म Collaboration. and a person to actually वर्क्स एज अ कनेक्टर बेसिकली. Hmm. जहां पे वो पुलिस को भी बुलाए, जहां पे वो इंजीनियर को भी बुलाए, क्योंकि Hmm. पुलिस वहां पे ऑन साइट हमेशा रहती है, उसको ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम का पता है. हाँ. राइट. Hmm. इंजीनियर को टेक्निकली पता है कि उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है. Hmm. बट देयर इज नो प्लेटफॉर्म एज सच टू कम टुगेदर. आई थिंक व्हेन विल क्रिएट दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहां पे आ सकेंगे ये सारे लोग, तो हमारे जैसे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे कम है, तो इसी तरीके से और भी लोगों को क्रिएट किया जा सकता है, विच कैन बी फ्रॉम समवन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, Hmm. someone from engineering department, PWD or NHAI or any other municipal department. Hmm. तो यहाँ से भी लोगों को क्रिएट किया जा सकता है कि इस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए. So now that you mentioned, we have a wonderful organization in Nagpur by the name of Jan Akrosh. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. What they are doing is a very different thing from what you are doing. They are encouraging people to change their behavior on the road. Wow, and, very and there's nice. a lot of element of behavioral change which you're talking about also. So Yes, yes. this collaboration which you're talking about is something that I think we can send across through this Ek Samvad also as a message that all the stakeholders should come together and do this. So Vibhav, एक जैसे आपने कहीं पर implement किया हो project, and हाँ जी. now when you look at it, how does Vibhav feel? Because you're such a young boy and you're making such a big difference, making a contribution through technology, solving such a problem. तो कैसा लगता है? How do you feel? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जब प्रोजेक्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है, बट सैडली इट्स वेरी सैड टू टेल यू कि हमारा जब से कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हर सेकेंड हर मिनट बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं हमारे साथ में. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि कितना भी काम कर ले, इसको कितनी जल्दी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं, बिकॉज दीज accidents, crashes have a big implications to nation, to India. तो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बस और होना इसको किस चाहिए. तरीके से और बेहतर किया जा सके, किस तरीके से इसको स्केल अप किया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सके किसी भी शहर में. So I totally agree with what you're saying. But we really need to save the lives of so many people, Yes, because of things that happen on the road. So just to look at it from a different perspective, how does this road accident scenario actually impact our economy in any way? Does it? यस मैम, डेफिनेटली. आई थिंक हमारे 3 से 5% का जीडीपी लॉस होता है. आपको मैं थोड़ा सा अगर नंबर्स में बताऊं तो वी कांट एक्चुअली कैलकुलेट और काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, बट इट इज इन लैक्स ऑफ करोड्स. इट्स इन बिलियन डॉलर इकोनॉमी दैट वी आर लूजिंग एवरी. तो बेसिकली इतना सारा पैसा, आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ. जब भी किसी की डेथ होती है रोड क्रैश में, कोई इंजरी होती है, डेथ्स होती है, Hmm. ज्यादातर हमारी जितने भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग इंजर्ड हो जाते हैं. 5 लाख अगर हमारी टोटल क्रैशेस हो रहे हैं एक साल में, जो कि डेटा है, ये मॉर्ड का ही डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का. इसमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इसमें बहुत सारे लाखों लोग
इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें वो अपने पैर खो देते हैं या हाथ खो देते हैं किसी भी तरीके से, जिसमें फ्यूचर में उनको काम करने में दिक्कतें आती हैं। जो लोग अपने जिनकी डेथ हो जाती है उनकी फैमिली सफर करती है, उनका काम सफर करता है, जिसके लिए वो काम कर रहे थे वो सफर करता है। Hmm. इट्स ऑल लिंक्ड टू ईच अदर, Absolutely. ईच लाइफ इज लिंक्ड Hmm. टू ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन आवर ओन लाइफ। एक Yes. तरीके से मान ली कि आज मैं एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहा हूँ और मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, मैं व्हील चेयर पे हूँ। Hmm. मेरे पास में इतनी एक्सेस है कि मैं थोड़ी दूर कहीं से जाके सामान ला सकता हूँ, ऑल्दो वी आर लिविंग इन द सिनेरियो वेयर वी कैन ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन। बट लेट्स से कि अगर मुझे फिजिकली जाना है और मेरा पड़ोस में ही जिसकी दुकान है उसी की डेथ हो गई, वो दुकान कौन रन करेगा अभी? मैं कैसे जाके ला पाऊंगा वो सामान, कैसे खरीदूंगा? फॉर वेरी लिटिल Yes. एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू Yes. Yes. कि एक एक डेथ, एक एंटिटी जो एक कहीं किसी छोटे से अर्बन एरिया या रूरल एरिया में है, और वहां पे उस डेथ की वजह से एक दिन का या 15 दिन का या एक महीने का कितना इकोनॉमिक लॉस है। आपने एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उस इंसान ने बेचा नहीं, उसने कहीं और से खरीदा नहीं, उसकी फैमिली कितनी सफर कर रही है, उसकी वजह से कितने लोग तो की मतलब जॉब भी गई होगी किसी की। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो दैट इज अनसीन, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसको देखा नहीं जाता। बट अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये बहुत डीप डिस्कशन है, बहुत डीप सिनेरियो है, जिसके बारे में देखा जाना चाहिए। और इसीलिए हर जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा देश बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सके Hmm. और डेवलपमेंट को और फास्ट किया जा सके। आज अगर हम थोड़ा सा पैसा रोड सेफ करने में डालेंगे तो इससे हमारे नेशन का इतना फायदा होगा, आई थिंक जितना फायदा आज हमारा यूथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ में डाल रहा है, Hmm. उतना ही फायदा हमें केवल रोड्स को सेफ करने से ही हो जाएगा। I think that's so precious, Vibhav. Very important information you have shared. And I want to specify here that, of course, every life is so precious. हम लोग उसको एक economic context में इसलिए देख रहे हैं because the work Vibhav is doing is making an impact there. Every life is precious. The loss of even one life, emotionally, psychologically, as well as economically, is a great loss. So, what are some of the ideas that you have that you're planning to work on and you would like to work on? Because तो बेसिकली एज इन मैंने जो आपको ट्रैफिक सिग्नल का बताया, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी क्विक एक्सरसाइज विद द पुलिस दैट वी कैन गो अहेड। हम right. उनको ये चीज बता सकते हैं कि जो मैनुअल वर्क है, आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को ऑन साइट भेज रहे हो, उसमें बहुत सारे ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं। Right, right. उस पे मैं अभी बहुत जल्दी काम करना चाह रहा हूँ, और उस पे आई थिंक देयर आर कपल ऑफ मीटिंग्स आल्सो अलाइन, जिसमें मैं कुछ All the ऑफिसर से best. मिलने वाला हूँ टू Mm-hmm. एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड, Hmm. और इसको किस तरीके से हम स्केल अप कर सकते हैं इस मॉडल को। सो वो जितना भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बिट पे है, उस पे भी वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव इट फर्दर, कि हम इसको और तेज कैसे कर सकते हैं प्रोसेस को। Right. आज अगर हमें 2 दिन लगता है या 3 दिन लगता है, तो हम उसको कुछ घंटों में कैसे कर सकते हैं, so that it will be easier for us. So that is a kind of a way forward that I'm looking at as of now. Yes, sir. And from the behavioral aspect also, the fact that you can just with a little bit of input, for example, like you said, लोग रुकना नहीं चाहते हैं, they want to go Yes, because सबसे ज्यादा जल्दी लोगों को रेड लाइट पर ही होती है, yes, whether they use that time for something otherwise or not, वो नहीं है, बट जंपिंग। तो ये शायद मुझे लगता है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर is a very yes. beautiful unique dimension that you brought. So tell ये us. नॉलेज गैप को हमको खत्म करना ही पड़ेगा जल्दी। आपको मैं एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, नागपुर में व्हेन आई वाज डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई आस्क्ड समवन कि ये जो 3 लाइट्स है हमारी, लाल, पीली और हरी, Hmm. इसमें पीली लाइट का क्या रोल है, क्या मतलब है? Hmm. यू वोंट बिलीव द पर्सन रिप्लाइड कि वो येलो लाइट का मतलब है कि यहाँ से बस जल्दी से अभी निकल जाओ। Oh my मतलब God. दे डोंट नो एग्जैक्टली कि येलो लाइट का पर्पस क्या है। Hmm. तो वो नॉलेज गैप को भी हमें दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और Yes. ये चीजें, एज इन यू जस्ट मेंशन कि जन आक्रोश इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ऑन ग्राउंड, Yes. मतलब Hmm. ऑन साइट जाके,
I think they are doing a very यूनिक एंड गुड जॉब इन अ वे Yes, yes. जिससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है. हमें लगता है कि आज किसी को बताने से क्या फर्क पड़ेगा या क्या Hmm, हो जाएगा hmm, जब तक उस पे नहीं बीतेगी, बट ऐसा नहीं है. hmm, अगर वो अपने आस पास आस पड़ोस पे जिस तरीके से हमारे सामने इतना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज आ रहा है, hmm, इट इज वेरी गुड ऑल्सो. अगेन इट इज वेरी सैडली सेइंग कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बुरा भी है, hmm, क्योंकि जितनी ज्यादा हम रोड्स को बनाएंगे उतने ही ज्यादा हमारे व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे. सो वी नीड टू लुक इनटू द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन बिट ऑल्सो, कि hmm, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरीके से फोकस होना चाहिए और वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं. उसके लिए कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं जिसपे हम आ सकते हैं, और उन बिहेवियरल चेंजेस को हम किस तरीके से इसमें एज अ अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं. राइट. तो वो एक चीज है जिसपे भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आई ऑल्सो, मी एंड माई वाइफ, शी इज ऑल्सो एन अर्बन प्लानर. We participated in one of the competition by Niti Aayog, that was the lifestyle for environment. okay. आपने सुना होगा, Hmm, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया था. hmm, So we participated in that idea competition huh, and we cleared the first stage. hmm, And अभी उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो इस महीने के एंड तक आना है. एंड वी हैव एक्चुअली वर्कड ऑन समथिंग रिलेटेड टू बिहेवियर. I can't talk about it much because of the certain things with the नीति आयोग, hmm, बट बिहेवियर को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं hmm, मतलब हमारे टेक्नोलॉजी के साथ. hmm. तो उस पे हमने थोड़ा सा उनको एक प्रपोजल बना के दिया है, और इसको हम ईज कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस को आसान कैसे किया जा सकता है. So that is something that I am looking at as of now. I think that's absolutely amazing because at the end of the day, it's human beings on the roads, in Yes, the vehicles, on the cross sections, the policemen, everybody. तो हम लोग के सबके बिहेवियर को अगर थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो आई थिंक द टेक्नोलॉजी right. ऑल्सो विल वर्क बेटर, विल गेट बेटर रिजल्ट्स. Definitely. Definitely. So Vibhav, very proud of you and all the very best. Is there something you would like to say to all the stakeholders before we conclude? I just want to say कि आप सब लोग जब भी सड़कों पे हो तो आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, उनका पालन करें. आप ये सोच के चलें कि जो आपके घर पे वेट कर रहे हैं वो एक्चुअली आपका वेट कर रहे हैं. आपका 10 सेकंड या 1 मिनट 5 मिनट लेट हो जाने से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा जिंदगी. आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएगी. मैं मानता हूं कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज, अगर हर इंसान बच के चले एक दूसरे से तो भी हमारी जिंदगी बहुत हमारे क्रैशेस में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी. ये क्रैशेस हमारे होते ही है क्योंकि हम लोग हड़बड़ाते हैं, जल्दी करते हैं. जल्दी ना करें, सावधानी से चलें, सुरक्षित रहें. बस इतना ही कहना चाहूंगा. So thank you so much, Vibhav. Change makers like you are uh, the pride of this nation, and we wish you the very best in all your ventures. And on behalf of Aruni Mankuran, also I would like to appeal to everyone who's listening in. Please encourage people to follow the traffic rules. The rules are meant for our own safety, and every life is precious. So thank you again, Vibhav. All the very best. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this conversation.